Okay. So we have already completed two methods of inverse. First was adjoint method and the second was row transformation method. Let us complete this third method of inverse also, that is finding inverse of a matrix using column transformation. Using column transformation. Let me take one example from the textbook only. This is one matrix A equal to 1 0 1 0 2 3 1 2 1. You have to find A inverse using column transformation. Let us understand this. I hope the very first step is clear to everybody. Yes? Please stand up. What is the first step while finding the inverse of a matrix by any method? Sit down. Yes, Prishti? We have to find the determinant of the matrix. We have to check whether it is singular or non-singular. It has to be a non-singular matrix. So in solution, the first step is to consider determinant of A, which is okay. Now plus minus plus. Now this is going to be 1, 2 minus 6 minus 0. So it doesn't make any difference because ऐसे भी वो 0 होने वाला है. 0 minus 2. So 1 into minus 4, this becomes 0. 1 into minus 2. So minus 4, minus 2, minus 6, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. ये तो common step है that we all know. We have to do it. Okay, that we have to check whether the matrix is invertible or not. Now, once the matrix is invertible, we are going to follow the method. Adjoint होता तो हम minor cofactor matrix, उसका transpose adjoint matrix और बाद में A inverse का formula 1 upon determinant into adjoint of A. Row transformation में we started with a property that a matrix multiplied by A inverse gives you what? Identity. Yes or no? Similarly, here also we will start with a property. अब ये याद रखना कि जब कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं? A into A inverse is equal to identity matrix. But in column transformation we use A inverse into A is an identity matrix. A inverse into A is an identity matrix. Okay. Now you must be thinking कि सर ऐसा क्यों? ठीक है, A into A inverse करके भी तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? So ऐसे तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि why रो में A into A inverse करना चाहिए और कॉलम में A inverse into A करना चाहिए. भले अगर किसी बच्चे ने कॉलम में A into A inverse करके भी सॉल्व किया, he will get the right answer. But actually वो प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगा. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टी राइट है, A into A inverse भी आई होता है. बट अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है आगे तो हम A into A inverse आई नहीं लिख सकते. उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा ये क्वेश्चन एक्सटेंड होगा बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट बुक में केवल एक लाइन लिखा हुआ है कि कन्वेंशनली ड्यूरिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वी यूज A inverse into A, बट दे हैव नॉट स्पेसिफाइड व्हाई. बट हम थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं ऐसा क्यों. सपोज मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2
4 0. This is one matrix. Okay, and suppose I take another matrix as -1 0 2 5. Let us multiply and check what is the answer first. Multiply क्या होगा आंसर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1, then 2 into 2 4. First row first column हो गया. First row second column 1 into 0 0, 2 into 5 10. Second row first column 4 into -1 -4, 0 into 2 0. Second row second column 4 into 0 0, 0 into 5 0. Is that clear? Yes. तो हमको क्या मिल गया कि this into this is equal to 3 minus 4 10 0. इतना समझ में आएगा? Yes. पक्का? अभी A इसको समझो A और इसको समझो B, इसको समझो C. A B equal to C. A B Equal to C. मैं अब इसके अंदर एक रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ. क्या करता हूँ? रो ट्रांसफॉर्मेशन. कोई भी एक रो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर अप्लाई करूँ, ठीक है, तो याद करो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे? ये A था, ये A इनवर्स था और ये B था. चेंजेस किसके अंदर होता था? इसके अंदर होता था और इसके अंदर होता था. ये ऐसे ही रखते थे. तो लेट अस डू दैट. ओके, कोई भी एक रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले लिया. R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 कर दिया. तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं. यहाँ पर बताएंगे आपको 1 plus 4 5, 2 plus 0 2. बाकी सब सेम. Even this is going to be same. Yes. A inverse equal to B. हमने A inverse में कोई चेंजेस किया था? नहीं. रो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं. तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे. समझ लो? इक्वल टू उधर करो 3 plus minus 4 minus 10 plus 0 10. yes or no? Yes. चेक करो कि ये करने के बाद अभी भी क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है. ऊपर तो है, वो तो हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया. लेट अस चेक दिस इनटू दिस. 5 into -1 -5, 2 into 2 4, 5 minus 4 5 minus 4 क्या होना चाहिए? 1. यहाँ पर क्या आ रहा है? समझ रही है? देखो वापस से माइनस 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए. 5 into -1 -5, 2 into 2 plus 4. तो -5 plus 4 क्या होता है? माइनस. तो करेक्ट है ना? तो दिस इज राइट. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 into 0 2 into 5 0 plus 10. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into -1 0 into 2 0, तो -4. Second row second column 4 into 0 0 into 5. This is right, and this is what we have done in row transformation. Yes. A inverse equal to B में या I में हम लोग क्या करते थे? A और I में चेंजेस करते थे, A इनवर्स में चेंजेस नहीं करते थे. अभी सपोज मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने इसमें और इसमें किया, इसमें और इसमें किया. तो देखते हैं क्या होता है. सपोज आई डिड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C2 को चेंज किया और मैं लिखूं C2 plus C1 इसके अंदर. अब ये ट्रू है ना, तो इसके अंदर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं. क्या होगा? फर्स्ट कॉलम एज इट इज, राइट. सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड होगा, तो 2 plus 5 7, 0 plus 4 4. ठीक है, मैं चेंजेस किस में कर रहा हूं? इसके अंदर और इसके अंदर, जैसा हमने रो में किया. ये वाला एज इट इज -1 0 2 5. यहाँ पर कॉलम सेम रहेगा, पहला कॉलम. सेकंड कॉलम में चेंज होगा क्या? C2 plus C1 10 minus 1 9, 0 plus -4 -4. अब चेक करना है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्या ये इक्वेशन ट्रू है. लेट अस चेक. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 into -1 -5, 7 into 2 plus 14, 14 minus 5 9. पहला ही एलिमेंट रॉन्ग आ गया, मतलब ये रॉन्ग हो गया. आई कैन नॉट डू. यस और नो? अब मैं आपको एक दूसरा चीज बता रहा हूँ. सेम ऑपरेशन करो इसके अंदर. हमने चेंजेस A और
बी में किया था, सॉरी ए और सी में किया था, बी को ऐसे ही छोड़ा था क्योंकि हमको भी ऐसा ही था ना, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, तो उसमें हम ए और आई में चेंज करते थे, ए इनवर्स को ऐसे ही रखते थे। अभी एक काम करो, इसमें चेंजेस मत करो कॉलम के टाइम, इसमें और इसमें चेंज करो और देखते हैं फिर क्या होता है। सो आई एम कीपिंग दिस फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज। ये वाला रफ कर दूं? ये पता चल गया ना ये रॉन्ग है, ये तो नीचे लिखते चलो ना, दिस इज रॉन्ग। ये वाले में सेम ऑपरेशन, क्या सेम ऑपरेशन क्या है, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। पहला वाला मैट्रिक्स को कुछ नहीं करना है, 5 4 2 0। सेकंड मैट्रिक्स पहला कॉलम तो सेम होगा, C2 प्लस C1, 0 प्लस माइनस 1 5 प्लस 2 क्लियर है, इक्वल टू -1 तो सेम रहेगा पहला कॉलम ना, 10 -1 0 प्लस -4 माइनस। अब चेक करो मल्टीप्लाई की क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू -1 -5, 2 इंटू 2 4, -5 प्लस 4 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 इंटू -1 -5, 2 इंटू 7 14, 14 minus 5 9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू -1 -4, 0 इंटू 0 माइनस, तो -4 प्लस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 प्लस 0, इज इट राइट? तो इससे अपने को एक चीज क्या सीखने को मिला, अगर मैट्रिक्स में A B इक्वल टू C है और आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये अगला स्टेप करेक्ट कभी होगा अगर मैं चेंजेस A के अंदर और C के अंदर करता हूं। बट वही अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो मुझे B और C में चेंज करना पड़ेगा, A को ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब सपोज अब मैं कॉलम करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में, तो अगर मैंने प्रॉपर्टी A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखता तो एज पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे चेंज किस में करना चाहिए था, इसमें और इसमें, बट ये तो मालूम ही नहीं है ना। और अगर मैं इसमें और इसमें कर दूं तो रॉन्ग हो गया, आप भी हमने देखा। अगर मैंने पहले में चेंज कर दिया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड में, तो फिर तो आंसर रॉन्ग आने वाला है। नहीं समझे? यहाँ पर हमको पता नहीं चलता है, यहाँ पर हमको पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करते ना। बट हमको ये अभी समझ गया ना आपको रीजन। कभी भी कॉलम में हमारा सेकेंड एलिमेंट B चेंज होता है, बराबर है, और ये चेंज होता है, और रो में फर्स्ट चेंज होता है और ये चेंज होता है। समझ में आ गया? पक्का? ओके। एग्जाम्पल इसने दिया कि इससे एकदम आपको समझ में आने का एक और रीजन है, मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं ना रो का कॉलम में, वो भी एक रीजन बता सकते हैं, बट ठीक है वो थोड़ा समझने के लिए आपको ये होगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से बता दिया। आपने खुद देख लिया कि बराबर है, रो में फर्स्ट वाले में चेंज करना पड़ेगा और कॉलम में सेकंड वाले में। सो नाउ व्हाट वी विल राइट, स्टेप्स आर सेम। A इक्वल्स एज इट इज रखेंगे, A मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 0 1 0 2 3 1 2 1 इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 0 0। इतना समझ में आ गया? अब याद करो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 कॉलम वाइज आते थे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज आएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे फिर इन दोनों को 0। एक्चुअली आपको लगता है कि आप रो में हो, बट एक्चुअली आप रो नहीं कर रहे हो, कॉलम में है ना, ये दिखता है ये रो है बट है एक्चुअली कॉलम में। तो पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1 बना के ये दोनों को 0, और फिर इसको 1 बना के ये दोनों को 0। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो देखो पहला वाला एलिमेंट जो है ये 1 ऑलरेडी है, ये 0 भी ऑलरेडी है, तो अब इसमें हमको क्यों इसको ही 0 बनाना है। ये किस कॉलम में है, कॉलम 3, यहाँ पर कॉलम 1। क्या करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, बिकॉज 1 1 ही है ना। तो पहला रो ट्रांसफर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1।
क्लियर एवरीबॉडी? ए इनवर्स एज इट इज रख दिया मैंने इनटू, चेंजेस किस में हो रहे हैं? कॉलम 3 में। तो पहले कॉलम 1 2 को कॉपी कर लो, तो 1 0 1 0 2 2। अब करो कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0 3 माइनस 0 3 1 minus 1 0 this is done equal to, again here also the first column keep as it is, second column keep as it is. Now 0 minus 1 minus 0 minus 0 0 1 minus 0, 1 so you got 1 0 0 2. Is that clear? yes अब आपको यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है? 1 अभी 2 को अगर मैं इस कॉलम को 2 से डिवाइड कर दूं, इस कॉलम को 2 से divide। 1 मिल जाएगा, बट देन यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन अगर आ जाए यहाँ पर तो आगे का कैलकुलेशन अभी बहुत कुछ बाकी है ना। अभी तो हम लोग सेकंड कॉलम में ही, हाँ कहीं लास्ट स्टेप में आता तो चलता है क्योंकि उसके बाद ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट यहाँ पर अगर इधर 1/2 आ गया तो अभी आगे तो बहुत जगह यूज होने वाला है। तो ट्राई करने का, कोशिश करने का कि बिना फ्रैक्शन से हम कुछ कर सकते हैं क्या। अगर वैसा है तो वैसा कर लेना, और सपोज कुछ ऑप्शन ही ना क्लिक हो कि नहीं तो फिर नो प्रॉब्लम, डिवाइड बाय 2 कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं, इसमें तो 0 0 ही रहेगा, एक ही टर्म आएगा 1/2, तो वी विल मैनेज इट। पर यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम बिना अपॉन 2 के भी कर सकते हैं। कैसे? कॉलम 1 ये दोनों है ना, मैं क्या करूँ, मैं इसको 1 बनाऊँ पहले, 3 minus 2 1 हो गया, ये 1 हो गया, बाद में इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ। ऐसे भी ये दोनों 0 0 है तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, बाद में ये 1 हो जाएगा और ये जो भी होगा बराबर है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर ये 1 बन गया तो इसको 2 को 1 बनाना इजी है ना। दिमाग में जा रहे हैं क्या एवरीबॉडी? यस और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट वो दो, क्योंकि वो 2 स्टेप इन्वॉल्व कर लेगा। एक बार इसको 1 बनाओ, फिर उसको इंटरचेंज करो, फिर उसको 2 को वापस करो, तो आपको जैसा मर्जी। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए, चाहिए तो मैं अभी फ्रैक्शन वाला ही करता हूँ सो दैट आपको फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन कॉलम 2 चेंजेस टू व्हाट, कॉलम 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉलम 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या क्या चेंजेस होगा, लेट्स सी। A inverse will be as it is. Okay, now first column same 1 0 1, third column same 0 3 0. Okay, equal to. Now every element of the second column will be divided by 2 0 divided by 2 0 2 divided by 2 1 2 divided by 2 1 clear. yes Here 1 0 0 0 minus 1 0 1 okay, now 0 divided by 2 0 1 divided by 2 1 by 2 0 divided by 2 0 अब ये 1 आ गया, अभी 1 आ गया तो इसको 0 बना दो, 0 बनाया तो वापस ट्रांसफॉर्मेशन, which transformation कॉलम 3 yes 2 कॉलम 3 में से कॉलम 2 Minus का 2 column. 3 times 3 times, so operation will be column 3 changes to column 3 minus 3 times column 2 3 times column 2. Let's see. A inverse as it is, first column as it is, second column as it is, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 0 minus 3 times of 0 0, 3 minus 3 ones are 3, 3 minus 3 0, समझ में आ रहा है? Next 0 minus 3 times of 1, 0 minus 3 minus 3, clear? yes Equals to first column as it is, second column as it is. Now column 3 minus 3 times of column 2, minus 1 minus Kishan minus 1 minus 3 times of 0, it is going to be minus 1. 0 minus 3 times of half, 0 minus 3 times of half means what? Minus 3 by 2. 1 minus 3 times of 0, it is going to be 1. So we got 1 0 0 0 1 0. Now we need to be 0 0 1. उसके लिए पहले यहाँ पर 1, अब यहाँ पर 1 लाने के लिए आप बोलोगे सर इसके साथ एक्सचेंज कर लो, और बट इसके साथ एक्सचेंज करोगे तो ये भी एक्सचेंज हो जाएगा, इसके साथ एक्सचेंज करोगे तो ऊपर वाला एक्सचेंज हो जाएगा,
तो आपको इसको 1 बनाने का एक ही तरीका हो गया, डिवाइड बाय -3। अब भले फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉलम 3 changes to column 3 divided by -2, A inverse. First column 1 0 same, second column same. 0 divided by -3 0, 0 divided by -3 0, -3 divided by -3 1. So ये 1 है, sorry. Here main चीज तो यहाँ पर है 1 0 0 0 half 0। अब सबको -3 से डिवाइड करना है। -1 divided by -3 1/3। दिस डिवाइड बाय -3 करूंगा तो -3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2। ये समझा गया? और 1 डिवाइड बाय -3 तो -1 समझेंगे। अब बस ये 0 को 0 बनाना है 1 का यूज करके, तो C1 का 0, C1 - C3, C3 को 0, C2 - एक साथ ही दोनों स्टेप कर सकते हैं। सो आई एम डूइंग द ऑपरेशन हियर। C1 changes to C1 - C3, C2 changes to C2 - C3। ठीक है, लेट्स सी A इनवर्स एज इट करते जाओ। 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0। सबका ध्यान यहाँ पर। C2 - C3 0 - 0 0, 1 - 0 1 - 1। 0। तो कहीं अगर गलती भी हो गया कि किसी की वजह से कोई चेंज होगा तो पता तो चलेगा ना, इसे सब में अप्लाई करो। बाद में 0 0 1। अब दिस इज मेजर थिंग, ठीक है। 1 - 1/3, 1 - 1/3, 3 - 1 2/3, 0 - half -half, 0 - -1/3। 1/3। Everybody come on. C2 - C1, 0 - 1/2, -1/2 -1/2, 0 0 - -1/3। 1/3। Third column में no changes, same. 1/2। Now you know that this is I, and A inverse into I is also identity. Yes or no? So this is A inverse, right? Answer ये होगा। अब आंसर थोड़ा दिखने में कैसा लग रहा है? तो मैंने क्या किया मालूम है? सबका LCM 6 बनाया। 6 बनाने के लिए मैंने क्या किया? जिसमें जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जैसे नीचे 3 है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 हो जाएगा। और जिधर नीचे 2 है उधर 3 का, और जिधर 1 है उधर 6 का, सो दैट आई कैन टेक 1/6 कॉमन थ्रू आउट। समझे क्या? 1/6 कॉमन ले लिया। अब ध्यान से लिखो आंसर। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का, तो 2 2 से क्या मिलेगा? 4। इधर 2 का तो क्या मिलेगा? -2। इधर भी 2 का, 2। इधर 3 का, 3 2 6, माइनस। इधर तो 0 ही रहेगा। इधर 3 का तो 3, इधर 2 का 2, इधर भी 2 का, 2 इधर -2। 2 का ही तो -2। दिस इज योर आंसर। 1/6 4 -2 2 -3 0 3 2 2 -2। ठीक है, यू कैन टेक माइनस कॉमन इफ यू वांट। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। समझा क्या? Yes. एग्जैक्टली हाउ वी डू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है कि वी हैव टू गो लाइक दिस 1 0 0 0 1 0 0 0। अच्छे से समझ के लिखो, कुछ डाउट है तो पूछो।